welcome to Nirmal Bang, ladies and gentlemen. I'm Hiral Dadia. We have with us Kunal Shah, Head of Commodities Research, joining in. Kunal, welcome to the show. Kunal, basis what we spoke of, on Monday, clearly the indication that we are getting is that this is not the right time to go long in terms of commodities, and the advice was to to sell on rise. How are you viewing it now? Okay, so today is the day, very important day, inflation data. So all eyes will be on what is the US inflation, and that will determine the course of the market. So, excuse me. So today 6 p.m. we have inflation data. So previous inflation reading was 8.6. Expected is 8.8. Okay, and I would say that what has happened in US. So before, I'm not an economist to predict the CPI of US, but what I've seen is in the month of June, the gasoline prices had hit an all-time high there. So at that time, gasoline prices were 5.2 per gallon in US, which is right now around 4.3, 4.4 per gallon. So already we've seen the peak prices in the month of June, and in the month of July we've seen a significant correction. So it is very important. Today's inflation data is going to be higher than expected. So if it comes around say 9% or 8.9%, okay, no need to panic, because all of these have been factored in the price. So I'm explaining you the trading perspective, how we are going to approach the market. So there are two scenarios. If inflation comes above expectation, okay, which is marginally high, say from 8.6 to 8.8 expected, and if it comes around 8.9 or 9%, not to panic at all. And if inflation drops below expectation, okay, in case there is a 10% chance of that happening, okay, if it comes at around say 8.6, in both the scenario, market have priced in everything today. So the way dollar index have strengthened, the way bond yields have corrected, the way commodity prices have corrected. So for evening session, I am of the view that after the inflation data, we can see some pullback in prices of commodity after such a major sell-off. So yesterday was one of those days where all the investment bankers downgraded the target of oil, downgraded the target of copper, everything. So if you see what happened 3 months back, 2 months back, none were downgrading their target. Since yesterday prices went down and the economic outlook started to look a little bad, everybody started to downgrade the price outlook of all these commodities. So I'm of the view that after the data, whatever fall which will come at evening session, at that time you can do some bit of bargain hunting, especially in gold and silver. So I am of the view that today I'm going to buy gold and silver during evening session. Silver, I think around 56,300, 350. I think a dip towards that I would buy. Gold around 50,500. I will buy. I will strictly keep a stop loss because I don't know what is going to happen. 50,300 stop loss for gold, and 56,000 should be the silver stop loss for silver. Because in yesterday worst time, also silver prices could not sustain below 56,000. So these are the levels, not on the basis of chart, as per the price, as per the price point of view. I find this level. So in Hindi, whatever I said, yes, कल हमने commodity में जो fall देखा सभी commodity में, वो डॉलर के स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा. डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया. यूएस के जो डेटा आ रहे हैं वो रिसेशन की ओर पॉइंट कर रहे हैं. तो जब रिसेशन आता है तो डिमांड सप्लाई देखते नहीं है. क्रूड का डिमांड सप्लाई तेजी का है. कॉपर की इन्वेंट्री लोएस्ट लेवल पे चल रही है. जिंक की इन्वेंट्री लोएस्ट लेवल पे. तो जिंक, कॉपर, क्रूड, ये सब में मंदी होनी ही नहीं चाहिए. बट रिसेशन के कंसर्न्स बढ़ रहे हैं, इसके लिए सब कमोडिटी में हमने सेलिंग देखा. पर आज इन्फ्लेशन का डेटा है शाम को 6 बजे. इन्फ्लेशन पहले था 8.6%, 8.6%. एक्सपेक्टेड है 8.8%. 9%, 8.9% भी आता है अगर बढ़ के, तो एक पैनिक फॉल आएगा इन द प्राइसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर.
तो डॉलर थोड़ा और स्ट्रांग होगा। पर ये इन्फ्लेशन के डेटा आने के पहले ही ये पूरा चीज डिस्काउंटेड हो गया है। तो जैसे हमने फ्राइडे को देखा था, नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आया, डेटा बहुत ज्यादा बुलिश था इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर के लिए बेरिश था, पर वो दिन शाम को गोल्ड और सिल्वर ऊपर आ गए। ये इसलिए होता है बिकॉज जो डेटा आने वाला है वो डेटा देख के हम एक्ट करते हैं, हम भूल जाते हैं उसके पहले क्या हुआ है। तो अगर ये डेटा 8.99 आता है तो मैंने जैसे बोला एक बार मोमेंटरी डिप आएगी, बट ज्यादा लंबा फॉल नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन, दूसरा पॉसिबिलिटी है इन्फ्लेशन 8.5 या 8.4 आया। अगर ऐसा होता है तो डॉलर इंडेक्स कमजोर हो जाएगा। सो इन बोथ द सिनारियो, अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आता है तो डिप आएगा, उसके बाद बाय करो, और अगर इन्फ्लेशन कम आता है एक्सपेक्टेशन से तो वो टाइम पे ही आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स वो टाइम पे कमजोर हो जाएगा। सो ये आज की इवनिंग के लिए मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। इट्स नॉट पोजिशनरी कमोडिटी सेल ऑन राइज ही है, ये आज के इवनिंग के लिए गोल्ड और सिल्वर में ये ट्रेड बनता है। राइट। और कुणाल, बेस मेटल्स में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? ओके, आज चाइना के ट्रेड डेटा है। सो इन चाइनीज ट्रेड डेटा, चाइना का कॉपर का इंपोर्ट 5% डाउन है, चाइना का जिंक का इंपोर्ट 3% डाउन है। अगर आप देखेंगे चाइना की जितने भी मेन जो कमोडिटीज है उसका इंपोर्ट, क्रूड का इंपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट नंबर में शेयर कर रहा हूँ, 20% डाउन है क्रूड का इंपोर्ट एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर YOY बेसिस पे। तो लास्ट साल जितना चाइना ने ये मंथ पे इंपोर्ट किया था उससे 20% कम इंपोर्ट इन द मंथ ऑफ जून किया है क्रूड। सो डिमांड कंसर्न आ रहा है, क्योंकि चाइना में जो पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है वहां की गवर्नमेंट, एक केस भी आता है कोई भी सिटी में सो दे इम्पोज कंप्लीट लॉकडाउन। सो आज जैसे अज्यूम कीजिए बॉम्बे में एक कोरोना का केस आ गया तो पूरा बॉम्बे लॉकडाउन। सो दैट्स हाउ दे आर वर्क, दैट्स हाउ दे आर फंक्शनिंग, इट डजंट मेक सेंस। तो इसके लिए वहां पे हालत बहुत खराब है। सो मेटल की डिमांड बहुत ज्यादा कमजोर लग रही है फिलहाल, और ये जो फाइनेंशियल टाइटनिंग चल रही है इसके चलते हुए भी मेटल में कोई तेजी की बात नहीं है। आज शाम को कॉपर एक बार आपको 32,600 अराउंड 632-35 ये लेवल आ सकता है। मैं अगर बहुत ज्यादा घट जाता है तो ठीक है, मैं बाइंग के लिए रिकमेंड करूंगा, पर मेरा ध्यान 635 मैक्सिमम वहां तक कॉपर जा सकता है। हमने आज मॉर्निंग को भी बाई कॉल दिया था, हमारा टारगेट ऑलमोस्ट आ गया। सो आज इवनिंग सेशन के लिए जैसे मैंने कहा डॉलर इंडेक्स को देखना है। अगर डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा कमजोर होता है तो ये कमोडिटी में थोड़ा बहुत पुल बैक 32-35 तक, जिंक एल्यूमिनियम सब 1-1, 2-2 रुपया बढ़ सकते हैं, उसके बाद लंबा तेजी कोई नजर नहीं आ रहा है। सो मैं आज आपको एकदम एग्रेसिव जो मैंने मंडे को कॉल दिया था ऐसे कॉल इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा अवेटेड है, बट स्टिल माय व्यू इज नॉट बुलिश। छोटा सा उछाला डेटा के बाद आ सकता है। राइट। और क्रूड और नेचुरल गैस में व्हाट शुड समवन डू? ओके, सो क्रूड सबसे बुलिश जिसके फंडामेंटल्स थे वो क्रूड था। कल ओपेक का मंथली रिपोर्ट उन्होंने रिलीज किया। मंथली रिपोर्ट में उन्होंने जो हर महीने वो लोग 2.5 लाख बैरल 4 लाख बैरल से प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो वो प्रोडक्शन बढ़ाने के बावजूद अक्टूबर 2021 से ओपेक ने हर महीने ये प्रोडक्शन 4 लाख बैरल बढ़ाने का चालू किया था। तो अभी तक ओपेक का जो ये कोटा है उससे ओपेक 1 मिलियन बैरल ऑयल कम प्रोड्यूस कर रहा है। What is the 1 million barrel? 1 million barrel is as good as China's 20% drop of oil demand. So जितना चाइना का ऑयल का डिमांड कम है उतना अभी तक ओपेक ने ऑयल प्रोड्यूस कम किया है। सो फंडामेंटली कच्चे तेल में अभी जो फैक्टर प्ले कर रहा है वो रिसेशन का फैक्टर प्ले कर रहा है। मैं कैसे कह सकता हूँ आपको कि रिसेशन आने ही वाला है या आने के चांस बढ़ गए हैं, बिकॉज यूएस में जो बॉन्ड यील्ड का एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो बॉन्ड मार्केट है यूएस की वो इंडिकेट कर रही है कि आगे जाके यूएस में स्लो डाउन है। अभी आप देखेंगे कि यूएस की बॉन्ड यील्ड ऊपर में जो बढ़ के 3.2 तक चली गई थी, सीधी अभी 2.9 आ गई है। सो लोग अगेन पीपल आर इन्वेस्टिंग इन स्टार्टेड टू गोइंग टुवर्ड्स बॉन्ड एंड डॉलर। तो ऐसे हालात में कोई भी लंबी तेजी होने की जगह नहीं है। कल हमने 8-9 का फॉल देखा है, आज मैक्सिमम 7750 77
80 तक जा सकता है। बाकी कच्चे तेल में मेरा कोई तेजी का रुझान नहीं है और ना कोई कमोडिटी में तेजी का रुझान है। गोल्ड और सिल्वर भी मैं आज आपको जो बाई करने के लिए कह रहा हूँ, कल खराब मार्केट में भी गोल्ड और सिल्वर बियॉन्ड द पॉइंट दे वर नॉट गोइंग डाउन, दे वर शोइंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। सो आज अगर डॉलर इंडेक्स थोड़ा पीक होके कमजोर होता है इन्फ्लेशन के डेटा के बाद, तो सिर्फ गोल्ड सिल्वर में मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आपको कह सकता हूँ कि आज गोल्ड सिल्वर में हम इवनिंग सेशन में बाइंग का कॉल देंगे या बाइंग करवाएंगे। बट फिलहाल वी हैव टू रियली वेट फॉर द डेटा एंड हाउ द, आप लोग सबको आज बहुत आई थिंक वी हैव द हाईएस्ट अटेंडीज टुडे, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज फोकस ऑन द डॉलर इंडेक्स एट द टाइम ऑफ डेटा, एंड डेटा के बाद 10 मिनट क्या डॉलर इंडेक्स में मूवमेंट आता है। सो आप फॉरेक्स फैक्ट्री या फिर investing.com ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर डॉलर इंडेक्स क्या डेटा के बाद रिस्पॉन्ड करता है 6 बजे, वो प्लीज आप मॉनिटर कीजिए। और अगर डॉलर इंडेक्स 160, 40, 50 हो जाता है तो कमोडिटी में एक पुल बैक आने की चांस बहुत ज्यादा है इवनिंग सेशन में। सो फंडामेंटल्स अभी भी तेजी के नहीं है। आज इवनिंग के लिए हम गोल्ड सिल्वर में एग्रेसिव पुश कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि उसमें कॉन्ट्रा प्ले आज प्ले कर सकते हैं और बाकी सब कमोडिटी में उछाले पे बेच के काम करेंगे। Correct. So that's the view coming in for today's session. Let's see US inflation data क्या आता है जिसके वजह से डॉलर इंडेक्स पे क्या impact पड़ता है। I think so there are questions people are asking. Okay, first of all, there is a question on short-term view on zinc, silver. There is I had bought silver at 62,000. Okay, Prakash, डेटा कितने बजे आएगा? ओके, सो नाउ द डेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, डेटा 6 बजे आने वाला है। अगेन आई एम रिकन्फर्मिंग, मेरा अभी ब्लूमबर्ग ऑन है, मैं आपको बता देता हूँ। 100% डेटा इज गोइंग टू कम एट 6 o'clock, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। द सेकंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग पोजिशनल ट्रेड ऑन सिल्वर। सी पोजिशनली ये लेवल्स से सिल्वर में मुझे बहुत ज्यादा डाउनसाइड नजर नहीं आ रही है, हमने बहुत नीचे देखी है, पर कोई M2M लॉस भरने की क्षमता रखता है उसको ही लॉन्ग जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स और ज्यादा शूट अप हो गया, इन्फ्लेशन 109-20 आ गया, ऐसा हो गया कुछ, सो ऐसे हालत में डॉलर इंडेक्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन शूट अप होता है तब। बट अगर आप देखेंगे पिछले महीने जो सब कमोडिटी के प्राइस थे और ये महीने जो कमोडिटी के प्राइस है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पिछले महीने ऑयल था $125, जैसे मैंने कहा गैसोलीन जो पेट्रोल हम जिसे कहते हैं सिंपल वे में, उसका रेट था यूएस में 105.30, जो अभी हो गया 104.30। तो ये जो डेटा आने वाला है वो भले बढ़ के आने दो, ये तो ऑलरेडी फैक्टर इन है, ये इसके कारण जो मंदी होना चाहिए वो मंदी ऑलरेडी हो चुका है। तो दिस इज समथिंग विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। सिल्वर पोजिशनली $18 का मुझे तो मंदी नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है $18 से नीचे जाना चाहिए, क्योंकि ये डेटा आते ही लोग पैनिक करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। पर इन्फ्लेशन अगर कंटेन आगे जाके कम होने वाला है तो फेड टाइटनिंग एग्रेसिव नहीं करेगा, टाइटनिंग एग्रेसिव नहीं करेगा तो डॉलर इंडेक्स कमजोर होगा, डॉलर इंडेक्स कमजोर होगा तो गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी रिकवरी देखने मिलेगी। आज हम जो गोल्ड के प्राइसेस देख रहे हैं उसमें से 5% जो ड्यूटी आप निकालते हो और 3% आप करेंसी डेप्रिसिएशन निकालते हो, तो 8%, सो 50,000 में से 8% आपने निकाला, तो ये गोल्ड का प्राइस अभी फिलहाल 46,000 चल रहा है। और अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ 46,000 में क्या गोल्ड सेल करना चाहिए, द आंसर इज नो। इसमें कोई लंबा हमको प्रॉफिट नहीं मिलना है 48,000 में 46,000 में गोल्ड सेल करके। सो प्लीज वॉच द मूवमेंट ऑफ द डॉलर एंड देन अकॉर्डिंगली विल टेक अ कॉल फॉर द ट्रेडिंग इन इवनिंग सेशन। Sure. So that's the view coming in overall in terms of the commodities market. Thank you, Kunal. Thank you, participants, for joining in. Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates.